Good morning, all of you. Today, see, yesterday, what we have done, that is total 18 MCQs with their solution. We have done it in chapter number 1 of solid state. Now, today, what we are going to do, there are few topics or the few important things which is given in the NCERT, okay, but not in the arranged manner. They have not arranged properly. So, such topic we are going to see in this session. Second thing, there is one topic. The topic is Bragg's equation, which is not given in the NCERT, but then on that basis, in specifically for JEE, they used to ask the MCQ also. So it is not available in the NCERT, but then let us learn it first, okay? And then once again we'll be going for the MCQ session, okay, for JEE NEET session. So now complete chapter, all the pattern of MCQs. If you're not able to finish it till that, in the morning or the afternoon, today 12 to 1 also the session is there. Okay, so in the morning also NEET will be there, NEET JEE will be there, and even Monday, Tuesday, 12 to 12:45, that session will also be of JEE NEET. Till will not able to finish the all the patterns of the MCQ. ओके सभी पैटर्न के एमसीक्यू ना होए तब तक हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके सो नाउ वी हैव द टॉपिक. लेट अस स्टार्ट इट. द टॉपिक इज ब्रैग्स इक्वेशन. ओके सो व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये ब्रैग्स इक्वेशन है क्या, उसकी हम बात करेंगे. सो इट इज अ फंडामेंटल इक्वेशन which gives a simple relation among the wavelength, that is lambda, of the X-rays and the inner planar distance in the crystal, the angle of reflection, inner planar distance in the crystal and the angle of reflection. So when what the equation is trying to say, which gives a simple relation among the wavelength of the X-rays, the inner planar distance in the crystal and the angle of reflection. So when any X-ray is falling on the particle, at the time, what is the wavelength of this X-rays? Second thing, the inner planar distance in the crystal, crystal के अंदर उसका distance क्या है वो, और वो कितने एंगल से रिफ्लेक्शन हो रहा है. ओके ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप ब्रैग इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिया गया है. ओके एंड द ब्रैग इक्वेशन जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसका is n lambda is equal to 2d sin theta. N lambda is equal to 2d sin theta is the Bragg's equation, the mathematical formulation of it. Okay, now here if you see the lambda, that is the wavelength of X-ray which is used. Lambda क्या है भाई? Wavelength. Then theta is the angle between the incident X-rays and the plane of crystal. Incident angle, okay, of X-rays when it is falling, it forms a specific layer, specific angle, not the layer. So incident angle of X-ray and the plane of the crystal, जो क्रिस्टल का प्लेन सरफेस रहता है उसके साथ जो इंसिडेंट एंगल होता है एक्सरे का, सो ये दोनों के बीच का जो एंगल जनरेट हो रहा है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लेम्डा.
Sorry, theta, not lambda. Lambda is the wavelength. Then d is the distance between the plane of the constituent particles in a crystal. जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, जो हमें कैलकुलेट करना हो, सपोज, सो दैट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल. Whereas the n is an integer, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, which represent the serial order of diffracted beams. Okay, so this is what the complete Bragg equation. It is a fundamental, okay, which represent the n lambda is equal to 2d sin theta. Okay, so this Bragg equation, it is not given in the NCERT. Okay, but then what is the equation, the all the parameters, that much we should be aware about it. Okay, now the next one, that is structures of some ionic solids. कुछ आयोनिक सॉलिड है, उनके स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर. आयोनिक सॉलिड, their structure and the coordination number. सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर की तो हमें पता ही है भाई कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है. ओके, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, यहाँ पे कोई एटम स्फेरिकल फॉर्म में हो सपोज, ठीक है, तो उसके आसपास वो एटम कितने दूसरे स्फेरिकल एटम के साथ कनेक्शन में है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, सो कुछ स्ट्रक्चर्स है आयोनिक सॉलिड के, ठीक है, जो बार बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. कल भी अगर बच्चों आपने देखा हो तो जो एमसीक्यूज थे, ठीक है, जो हमने सॉल्व किए यस्टरडे, व्हाट एमसीक्यू वी हैव सॉल्व, ओके, तो उसके अंदर भी आपको इसके एमसीक्यू अवेलेबल है. ठीक है, सो सबसे पहले है रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट इज द NaCl, सोडियम क्लोराइड. ओके, उनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो है FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. उनका अरेंजमेंट है वो FCC है, वो सबसे पहले हमें याद रखना है. देन द कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रहते हैं भाई, एनायन एंड केटायन, जो बार बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, अगेन एंड अगेन दे यूज्ड टू आस्क द MCQs फ्रॉम दीज. ओके, सो इन केस ऑफ द Na plus ion, sodium plus ion, तो 6 coordination number, whereas chloride ion is once again the 6 chloride ion, 6 chloride. Okay, that is 6 coordination number. Example of rock salt is LiCl, AgF, AgCl, NH4Br. Okay, these are the few examples of the rock salt. Okay, after that we have the second one, that is CaCl, cesium chloride, that is BCC arrangement. सबसे पहले तो arrangement याद रखो. Okay, sometime see in a MCQ generally they used to give the arrangement, but if they are not giving the arrangement directly, if they used to give the example of substance or a compound, then we should be aware about that arrangement. Okay, so CaCl, cesium chloride, is the BCC, that is body centered cubic unit cell. Okay, the coordination number of cesium is 8 Cl, and sorry 8 only, Cs plus 8 Cs plus. कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का कितना रहने वाला है, पॉजिटिव आयन का, तो दैट वुड बी द 8, और क्लोराइड आयन जो है उसका भी 8 होने वाला है. ओके, एग्जांपल CaCN, TiCl, TiCN etc. आर द फ्यू अदर एग्जांपल ऑफ CaCl type. Okay, then zinc blend, that is ZnS. Okay, zinc sulfide also they can ask, and they can ask about zinc blend also. ओके, सो इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है भाई, द अरेंजमेंट ऑफ दिस इज CCP और FCC, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और एल्स फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है भाई. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 इसमें कितना होने वाला है, दैट इज 4, एंड सल्फाइड -2 आयन का 4. कुछ और एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज CuCl and AgI. AgI का कल MCQ था, हमने सॉल्व किया हुआ था. ठीक है, सो देन फ्लोराइड, ये भी पूछा गया था कल. फ्लोराइड, दैट इज CaF2.
CaF2, ओके। CCP अरेंजमेंट है उनका, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो Ca+2 का है इसमें, दैट इज 8। Ca+2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 8। एंड फ्लोराइड आयन उसका 4 है, वो आधा होने वाला है। ये चीज ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू कल भी था, ठीक है। फ्लोराइड आयन, सॉरी फ्लोराइड टाइप दैट इज CaF2 इन विच द कैल्शियम जो है +2, उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 8 एंड फ्लोराइड आयन इट इज 4, ओके। कुछ और एग्जांपल है फ्लोराइड टाइप के, CdF2, PbF2, BaCl2, SrCl2, okay. These are the few other examples of fluoride, okay. Then antifluoride, A2B टाइप CCP अरेंजमेंट होने वाला है उनका, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ जो है वो 4 होने वाला है, ऑक्साइड का 8 होने वाला है। एंड द एग्जांपल ऑफ antifluoride टाइप कंपाउंड इज Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, ओके। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। सो वंस अगेन ऑल दिस पैरामीटर्स, okay, structures of some ionic compounds, there are few ionic compounds what they have given, and उनका जो coordination number है और उसके कुछ other examples they have given, okay. So these completely we have to remember it, okay, for JEE and NEET session. Next one, there is a note over here which is very much important. On applying the pressure, NaCl structure 6 जेम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसमें है Na+ और Cl- का, changes into CSCl in cesium chloride 8s to H coordination number, and reverse of this occur at high temperature. See, when you apply the pressure, बहुत important है बच्चों, when you are applying the pressure, ये बार बार पूछा जाता है जब क्वेश्चन बहुत लेंथ वाला हो तो, ठीक है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रेशर, NaCl का आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो NaCl में Na+ और Cl- केटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, ठीक है। पर जब उसको आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑन टू द NaCl, ओके, एट द टाइम दिस क्रिस्टल इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द CSCl, वो सीजियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके एनायन और केटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है बच्चों, ठीक है, दैट इज 8, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल प्रेशर पे बोले, ठीक है, तो वो नॉर्मल प्रेशर पे NaCl ही रहने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है। पर सपोज व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रेशर, ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, एमसीक्यू के क्वेश्चन में, सपोज इफ दे हैव रिटन ऑन अप्लाइंग द प्रेशर बाय अप्लाइंग द प्रेशर टू NaCl, तो वो और फिर आप 6 लिख के आओगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इनकरेक्ट होने वाला है भाई, ठीक है। सो वहां पे वो CSCl यानी कि सीजियम क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिवर्स ऑफ दिस अकर, इसका रिवर्स भी हो सकता है एट हाई टेम्परेचर। अगर आपके पास CSCl हो, सीजियम क्लोराइड 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर अप्लाई करो आप, ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द NaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस नॉट वी नीड टू कीप इन माइंड, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट इट इज, ओके। द शेप ऑफ द सॉलिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द रेडियस रेशियो व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ओके। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रेडियस रेशियो R+/R-, ठीक है, where less than 0.155, that is 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, लिनियर स्ट्रक्चर होने वाला है। 0.155 to 0.225 तक जाओ अगर आप, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 होने वाला है, ठीक है। प्लेनर ट्रायंगुलर, उसका एग्जांपल है हमारे पास B2O3। जियोमेट्री क्या है? प्लेनर ट्रायंगुलर, ओके, एंड द एग्जांपल इज B2O3। देन 0.225 to 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, CuCl एंड CuBr इज द एग्जांपल ऑफ इट, ओके। देन 0.414 to 0.732, 414 से लेके आप 0.732 तक जा रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएंगे। 6 के ऊपर से आप उसको स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिकल शेप उसका ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, और उसके एग्जांपल में हमारे पास है NaBr एंड KBr, ओके। उसके बाद
0.73221, 0.73221। द कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो 8 होने वाला है, क्यूबिक स्ट्रक्चर रहने वाला है। उसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास है CSL एंड CSBr। ओके, आफ्टर दैट, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। ओके, जो इवन टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, बट देन वी हैव टू फाइंड इट, उसको हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, so relationship between the nearest distance, that is d, and the radius of an atom। ओके, सो उसके लिए जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तीन अरेंजमेंट दी गई है। उनका जो डिस्टेंस है, अगर वो आपको मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो, ओके, तो उसके लिए भी तीनों के फॉर्मूला दिए गए। एंड इफ यू डोंट वांट टू मेजर द डिस्टेंस, सपोज आपको रेडियस मेजर करने का बोला गया है, तो उसके लिए भी हमारे पास उनके फॉर्मूलाज है। ठीक है, सो सिंपल क्यूबिक, देखो ये मैंने आपके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी कल परसों मैंने एक दो दिन पहले पूरा का पूरा माइंड मैप भेजा था, द कंप्लीट माइंड मैप ऑफ द चैप्टर। ओके, तो उसमें भी मैंने ये दिया गया था। ठीक है, सो फेस सेंट सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर नियरेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू a ही होने वाला है, d इज इक्वल टू a। ओके, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, देन सेकेंड थिंग, रेडियस r इज इक्वल टू a/2। ठीक है, रेडियस अगर आपको एटम का रेडियस मेजर करना हो, सपोज वी हैव टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम, सो r इज इक्वल टू a/2 इट वुड बी फॉर सिंपल क्यूबिक। ओके, दूसरा हमारे पास है फेस सेंटर क्यूबिक, FCC। तो इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए d इज इक्वल टू a/√2, d इज इक्वल टू a/√2। ओके, नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए। वेर एज फॉर एटम, रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस मेजर करना हो तो r इज इक्वल टू a/2√2, r इज इक्वल टू a/2 into √2। ओके, then after we have the body center cubic। okay, so in case of the body center cubic में अगर आप बात करो, okay, so nearest distance के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, that is d is equal to √3 into a/2, √3 into a/2 to calculate the nearest distance in case of the body center cubic, that is BCC। then the radius of an atom, suppose if you have to calculate it, okay, then r is equal to √3 into a/4, r is equal to √3/4 into a। okay, so these are the few formulas for arrangement of simple cubic, face center cubic and body center cubic for to calculate the nearest distance, that is d, and the radius of an atom, that is r। ओके, यहाँ पे आपको एमसीक्यू के अंदर एज ए भी कैलकुलेट करने का पूछते। सो आपके पास रेडियस ऑन ए के बीच एज एंड रेडियस, ये दोनों का रिलेशनशिप है ऑलरेडी, तो उसमें से आप ए को सब्जेक्ट बना लो। ओके, देन यू कैन डू द कैलकुलेशन फॉर एज इज ऑल्सो। ओके, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। ओके, ये भी बार बार पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको एलिमेंट का सिंबल या फिर नेम्स दे देते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट द अदर थिंग्स अबाउट द अरेंजमेंट। बट देन सबसे पहले हमें कौन सा एलिमेंट है और उनका अरेंजमेंट कैसा रहता है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। इफ दे गिव द अरेंजमेंट देन तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा, पर सपोज वो अरेंजमेंट नहीं दे रहे हैं, only name of element if they are giving or their symbol if they are giving, then the structure we should be aware which kind of the structure they have। okay, so the crystal structures adapted by some metallic elements at 25 degree on Celsius at 1 bar pressure। देखो ये यहाँ पे दे दिया गया है at 25 degree on Celsius and 1 bar pressure, specific temperature and specific pressure they have given।
Okay, so at that time we have different crystal structure and their elements. So let us start the table one by one. The first one, that is HCP, that is hexagonal closed pack structure. The structure of crystal is HCP, and their element, their example of elements, that is Be, Cd, Co, Mg, Ca, Ti, and Zn. Once again, I am repeating: Be, Cd, Co, Mg, Ca, Ti, and Zn. Okay, beryllium, cadmium, cobalt, magnesium, calcium, titanium, and zinc. Okay. After that, the second category, what we have it, that is FCC, that is face-centered cubic unit cell. Okay. So for the same, silver, aluminum, gold, calcium, copper, nickel, lead, and platinum. Ag, Al, Au, Ca. Now see, Ca is also available in HCP also and in FCC also for calcium. Then copper, nickel, lead, that is Pb, and platinum, that is Pt. Okay. After that, in BCC, body centered cubic unit cell, that is Ba, Cr, Fe, and Ir, and all alkali metals. Okay. After that, primitive cubic, the crystal structure is the primitive cubic, that is polonium, in case of the primitive cubic. Okay, so that's all for today. Once again, what we have done it, let me revise you the topics which are very much important. The first one, it was the Bragg's equation, n lambda is equal to 2d sine theta. After that, the structure of some ionic sound solids with their coordination number for JEE NEET, very much important it is. Okay. After that, we have this knot also, which is too much important, and the table of solids can be determined the radius ratio as well as yes, radius ratio, which is given over here. Okay, with their example. After that, the relationship between the nearest distance, that is d, and radius of an atom. Okay, for simple cubic, face centered cubic, and body centered cubic, the distance as well as radius. रेडियस के फॉर्मूला में एज ए को आप सब्जेक्ट बना दो तो वो भी कैलकुलेट यहाँ से अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर यू कैन कैलकुलेट इट. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, कुछ मेटल के एग्जाम्पल या फिर एलिमेंट बोलो. ठीक है, और उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है उसकी हमने बात की. ठीक है, तो ये जो चीजें है, ठीक है, जो JEE नीट का आपने सेपरेट बुक बनाया है उसमें आपको मेंशन कर देनी है नोट्स करके. ठीक है, और उसके बाद में आज इवनिंग, मतलब कि 12 नॉट इवनिंग, इन द आफ्टरनून 12 to 12:45 हम फिर से MCQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, कुछ तो दैट्स ऑल फॉर हियर. ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो.